Good afternoon to everybody. Hitendra Soneji over here, signing in again. So today I will be just giving you few tips regarding your business. So let's talk about your business. Taking your business to the next level. Hope everybody is interested in taking their business to the next level. Yes. Definitely everybody will say yes. Can you raise your hands? So I can see all hands are up. That means everybody is interested in taking their business to the next level. Now my next question is how? How are you going to take your business to the next level? You can answer. Yeah, please. Firstly, to decide not to be where we are, but be focusing on where we want to be. Perfect, okay. You got to set up the goals. Set up the goals. Yeah, as Shraddha ji said. Yeah. Fantastic. Then, और कुछ बिजनेस तो लेके जाना है आपको नेक्स्ट लेवल पे. It is a everybody's dream. Every businessman, every entrepreneur, is dreaming about his business. That I should take my business to the next level. But the biggest question is how? What you know. And what you don't know, you don't know. It's very simple. According to your knowledge about the business you are having, you have invested your knowledge into your business. आपके पास में जितना ज्ञान है, जितना नॉलेज है, उतना आपने अपने बिजनेस के अंदर डाल दिया. सब इस्तेमाल कर दिया नॉलेज. You have used your knowledge. नॉलेज यूज करने के बाद क्या हुआ? अब दूसरा नॉलेज नहीं है मेरे पास. So we are stuck. हम एक जगह पे रुक गए अभी कि मैं अभी आगे कैसे जाऊं, बिकॉज मेरे को पता नहीं है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं. नो प्रॉब्लम, हितेंद्र सोनी जी इज हियर. उसके लिए मैं आया हूं यहाँ पे. नथिंग टू वरी. नॉलेज इज पावर. जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे, आगे कैसे बढ़ने का, आगे नहीं बढ़ सकोगे. So you have to upgrade yourself every time. Upgrade yourself means you have to learn every time. Develop the habit of learning. Develop the habit of skill developing. Develop your skills. अपनी abilities को बढ़ाओ, अपने क्षमताओं को बढ़ाओ, अपने knowledge को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ. अपने business के related जितना भी आप सीख सकते हो उतना सीखो और business को आगे आप लेके जा सकते हो. Now my next question, मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछूंगा. Who are the main pillars of your organization? You can answer this question. Team. Okay, good. Systems and processes. System and process, good. Or resources, good. Customers, suppliers, and your team. Customers, suppliers, and your team. And your team. Fantastic. जबरदस्त जवाब दिया सबने. Very right. You have got two main pillars. Focus on two main pillars. One is your employees, second is your customers. आपका बिजनेस दो खंभों पे खड़ा है. अगर उसमें से एक खंभा निकाल दिया तो क्या होगा? Business will collapse. Right? Just imagine आपके पास में कोई एम्प्लॉय नहीं है. You don't have any employee. क्या करेंगे आप? Can you run your business alone? Can you take your business to the next level alone? No, not at all. What if you don't have customers with you? What if you don't have customers? You have employees, but you don't have customers. Again, your business will get collapsed. You cannot do your business, you cannot take your business to the next level when you don't have these two important pillars in your organization. And to support your employees and customers, you have to have certain strategies. कुछ करना पड़ेगा
ताकि मैं मेरे बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकूं, राइट। मुझे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना रेवेन्यू को अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा, कस्टमर के बेस को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। कस्टमर बेस चाहिए ना अपने को। अगर आज मेरे पास में 50 कस्टमर है तो मेरे को बाद में नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर ज्यादा चाहिए, 80 कस्टमर चाहिए, 100 कस्टमर चाहिए, 150 कस्टमर चाहिए। मेरे को कस्टमर का बेस बढ़ाना है। कस्टमर का बेस बढ़ेगा तभी रेवेन्यू बढ़ेगा, जब रेवेन्यू बढ़ेगा तब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तभी हमारा एक्सपेंशन होता है। बिजनेस सब करते हैं, रुपया सब कमाते हैं, रेवेन्यू सब जनरेट करते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कितने लोग बनाते हैं? क्या आपका धंधा आज फायदे में है कि नुकसान में है? फायदे में है तभी आप उसको पैसे को घुमा सकते हो, रोल कर सकते हो एक्सपांशन के लिए, तभी आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, तभी आप बिजनेस को लेके जा सकते हो नेक्स्ट लेवल पे। क्योंकि आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए रुपया भी चाहिए। यू रिक्वायर मनी, विदाउट मनी यू कैन नॉट एक्सपांड योर बिजनेस, राइट। सो देयर आर सेवरल strategies which I will be giving you, certain tips to grow your business। कुछ बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने को कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज चाहिए, तो मैं कुछ टिप्स आप लोगों को मैं दे दूंगा आज, जिसे आप इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। आप फोटोज भी ले सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं टिप्स जो दूंगा वो टिप्स के आप फोटोज भी ले सकते हो मोबाइल में अपने, और उसको इंप्लीमेंट करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम क्या करते हैं, हम जब नई चीज सीखते हैं ना, व्हाट वी डू, जब कुछ नई चीज सीखते हैं हम क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। आज एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। वी ऑल आर इंटेलिजेंट पीपल, वी ऑल आर नॉलेजेबल पीपल, वी आर ऑल इंफॉर्मेटिव पीपल। हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, क्षमता है, सब कुछ करने की है, बहुत सारा नॉलेज है हमारे पास, बहुत सारा ज्ञान है, फिर हम करते क्या उस ज्ञान का? देन व्हाट वी डू टू दैट नॉलेज? डू वी इंप्लीमेंट आवर नॉलेज? नो, वी डोंट इंप्लीमेंट आवर नॉलेज 100%। हम उस नॉलेज को हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। अगर हमारे पास ही इतना, खुद के पास ही इतना ज्ञान है, अगर हमारा खुद का ज्ञान, खुद का नॉलेज अगर हम अपने बिजनेस में लगाएंगे ना, तो ही हमारा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। एंड आई कैन प्रूव दिस। मैं अभी कभी प्रूव करके दिखा सकता हूं कि आप सबके पास में नॉलेज है, लेकिन नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। करूं प्रूव क्या? यस और नो? एक सिंपल जनरल क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। एवरीबडी नोज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टू डू सम फिजिकल एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। ये नॉलेज सबके पास में है ना? हाउ मेनी ऑफ यू इंप्लीमेंट दिस नॉलेज? Hardly few people are implementing that। इसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरों के पास में नॉलेज नहीं है जो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, नॉलेज है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो सिमिलर वे वी हैव द नॉलेज अबाउट आवर बिजनेस टू टेक दैट बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। क्यों इंप्लीमेंट नहीं करते नॉलेज को? सिंपल रीजन है, फोकस नहीं है, और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो सबके अंदर है, लेजीनेस। परफेक्ट, किसने बोला ये? परफेक्ट जवाब दिया, 100% सही जवाब दिया। इट इज कॉल्ड लेजीनेस। क्योंकि हमको एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। वी आर यूज्ड टू डू द रेगुलर थिंग्स। सुबह उठना, ऑफिस में जाना, वही काम, रूटीन काम करना, रूटीन काम करके भी शाम को घर पे चले जाना। सो वी आर हैबिचुएटेड टू डू द रूटीन वर्क। दैट मींस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग आवरसेल्फ इनटू द कंफर्ट जोन। वी आर पुटिंग आवरसेल्फ इन द कंफर्ट जोन। और हमको पता है कि कंफर्ट जोन के बाहर अपॉर्चुनिटीज है। Many opportunities are waiting outside the comfort zone. We know that. Because opportunities are not going to come inside the comfort zone. You have to go outside the comfort zone and grab the opportunities. ये भी हमको पता है, right? लेकिन हम निकलते नहीं है क्यों comfort zone से बाहर? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? आलस, laziness. Because of laziness, we are not moving out of our
कंफर्ट जोन, क्योंकि हमको पता है कि मैं बाहर निकलूंगा कंफर्ट जोन से तो मेरे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम करना पड़ेगा, 12 घंटे की जगह 15 घंटा काम करना पड़ेगा, लेकिन बट आई एम नॉट रेडी टू पुट हार्ड एफर्ट्स, लेकिन आई वांट टू टेक माय बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, यस आई वांट। लेकिन कंफर्ट जोन में बैठे बैठे हाउ कैन यू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल? तो उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू लीव योर लेजीनेस, आलस छोड़ देना है, मेहनत करनी है, मेहनत हार्ड वर्क करना है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं डालोगे और जितना नॉलेज आपके पास में है उसको यूज नहीं करोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगा। तो फ्यू टिप्स मैं आपको बता देता हूं फटाफट में, क्योंकि सबको भूख भी लगी होगी अभी, सबके चेहरे में देख रहा हूं एकदम लगी है भूख, राइट? सो नंबर 1 इज क्रिएटिंग अ स्ट्रेटेजिक प्लान। आपके पास में आपका बिजनेस का एक विजन होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग अ विजन स्टेटमेंट अबाउट योर बिजनेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 few people, right? What about the rest? The people who are not having the vision statement are also willing to take their business to the next level, but they don't have the vision. The number 1. So you should have a realistic vision. That is the future plan. How? The question I asked you. You want to take your business to the next level, but how? So you should have your future plan with you. The realistic vision you should have. The realistic plan you should have. Then second is setting goals. How many of you have prepared your business goals? The same question I am asking you. Shraddha ji already have asked you this question. Very few people. So you should set some business goals. Now if you want to take your business to the next level, so at what level you want to take your business? कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? कहां पे लेके जाना चाहते हो, किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो? आपके बिजनेस के अंदर आपको कस्टमर ज्यादा चाहिए, राइट? तो कस्टमर ज्यादा लाने के लिए, ज्यादा बिजनेस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्स टीम बनानी पड़ेगी, राइट? बिना सेल्स टीम के सेल्स आएगा नहीं। तो सेल्स टीम लाएंगे तो सेल्स के बंदे तो हम लेके आते हैं, लेकिन क्या उन सेल्स के बंदों को हम प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं कि नहीं? वी डोंट ट्रेन देम। हम उसको ये बता देते, बेटा ये कपड़ा है, ये टेक्सटाइल है, इसका ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा वैसा, थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजें बता देते हैं उसको, कपड़े का मटेरियल नाम बता देते हैं और जाबेस क्या, बट उसके पास में स्किल्स नहीं है सेलिंग के। तो यू हैव टू ट्रेन योर सेल्स पीपल। उसको जब तक आप ट्रेन नहीं करेंगे वो बेच के नहीं आएगा, राइट? तो प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है एम्प्लॉयज को, सेल्स टीम को भी जरूरत है। तो गोल्स जो हमको बनाने हैं ना, दैट शुड बी क्लियर गोल्स, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर गोल्स अबाउट योर बिजनेस। एक नंबर 1 एक तो हो गया आपका प्रोफेशनल गोल, यानी कि बिजनेस को लेके, उसके साथ जुड़ा है आपका पर्सनल गोल। अब 2 गोल्स आपके एक साथ अचीव होंगे आपके। You can achieve 2 goals at a time, personal and professional goal, right? When you want to set the goals, so your goals should be smart. जैसे श्रद्धा जी ने पहले से ही बता दिया, उन्होंने काफी मेरा काम आसान कर दिया उन्होंने, लेकिन मैं इसको थोड़ा और डुबकी मारता उसके अंदर, थोड़ा डीप जाता उसके अंदर। जब स्मार्ट की हम बात करते हैं तो व्हाट डज दैट स्मार्ट मीन्स, राइट? स्मार्ट मीन्स जो उसका सबसे पहला लेटर है दैट इज स्पेसिफिक। नाउ जब आप अपने बिजनेस का गोल बनाओगे तो योर गोल शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स यूजिंग स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड एक्शन वर्ड्स टू ले आउट व्हाट यू वांट टू अचीव। आपको क्या अचीव करना है। नाउ सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। अभी आपको एक गाड़ी लेनी है। आपको जब गाड़ी लेनी है तो आप क्या करते हो? कोई भी गाड़ी ले लेते हो? नो, व्हाट यू डू, यू आर स्पेसिफिक कि मेरे को होंडा की लेनी है, फोर्ड की लेनी है, या मारुति की लेनी है, या
महिंद्रा की लेनी है, आप क्या स्पेसिफाई करते हो ना, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा कलर लेना है. That is called specific goal. You should be clear about your goal, what you want to have in future. Then the next alphabet, smart में क्या है? M. M means measurable. That you can measure your goals. अगर आज आपने goals बनाया, goals बनाने के ऊपर उसके ऊपर काम किया, काम करने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि मैं मेरे गोल से कितने नजदीक पहुंचा हूं, right? So that should be measurable. So how will you measure your progress? Is there any data you can use, such as internet traffic or sales? Then the next letter is achievable. Achievable means जो आप achieve कर सकते हो. What you can achieve. Your goals should be stretched. Easy नहीं होने चाहिए. Easy नहीं होने चाहिए कि यार हैंड पिक, अब ये पानी का बॉटल यहाँ पड़ा हुआ है, पानी का बॉटल एक पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैंने हाथ बढ़ाया और ले लिया, इजीली ले लिया, राइट? तो आपके गोल्स इतने इजी नहीं होने चाहिए. गोल्स कैसे होने चाहिए? स्ट्रेचेबल होने चाहिए, थोड़े डिफिकल्ट होने चाहिए, ताकि थोड़ी मेहनत करनी पड़े उसको हासिल करने के लिए. तब आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आपके अंदर एक बिलीव फैक्टर पैदा होता है कि यस, आई ऑल्सो कैन अचीव समथिंग डिफिकल्ट. और इतना डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको अचीव नहीं कर सको. पानी की बोतल उधर है और मैं यहां खड़ा हूं, अभी मैं कितना भी स्ट्रेच करूं मैं वहां तक नहीं पहुंच सकूंगा. गेटिंग इट? लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्पेशली जब आदमी प्यार में पड़ जाता है ना. द यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं, बाकी तो सब यंग ही है यहाँ पे. और स्पेशली यंगस्टर्स क्या डायलॉग मारते हैं मालूम है क्या? अपने गर्लफ्रेंड को, तेरे लिए तो मैं आसमान के चांद तारे भी है ना तोड़ के ला सकता हूं. इज इट पॉसिबल? अगर वो लड़की ने बोल दिया हाथ तोड़ के तो ला सकता है वो? That is not achievable. जो पॉसिबल नहीं है. तो इन बिजनेस ऑल्सो यू शुड थिंक प्रैक्टिकली. What is possible? आप क्या हासिल कर सकते हो, वही गोल बनाना है जो अचीवेबल हो, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो. राइट? होप everybody is understanding the points. The next is relevant. Now topics like customer leads, profitability, sales, etc. are all relevant goals for the business. ये certain tips है. तो your goals should be relevant to your business. आपके बिजनेस के रिलेवेंट होने चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जा सको. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम बॉन्ड. यू हैव टू टाई योरसेल्फ इन टाइम कि मैं ये गोल कितने टाइम में अचीव करूंगा. 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में मैं कब तक अचीव करूंगा. एक लिमिट होना चाहिए. एक होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा होना चाहिए एंड पॉइंट. Why this is important? Why this is important? Why you should have end point? टाइम बॉन्ड क्यों होना चाहिए? टाइम लिमिट क्यों होना चाहिए? अगर टाइम बॉन्ड नहीं होगा, टाइम लिमिट नहीं होगा ना, you will never achieve the goal. You will never achieve the goal. क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे ये तो मेरा बिजनेस है, ये तो मेरा गोल है, मैं तो कभी भी अचीव कर लूंगा. कभी भी अचीव करूंगा मतलब कभी भी अचीव नहीं करूंगा. So that is, you have to put yourself in conditions. टाइम कंडीशंस, टाइम बाउंड होना चाहिए, तभी आपका गोल अचीव होगा, नहीं तो नहीं होगा. देन फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट. द डिलीवरी क्वालिटी सर्विस इज अ प्राइमरी रीजन व्हाई कस्टमर्स विल स्टे विथ योर बिजनेस. ये आजकल कॉम्पिटिटिव मार्केट है. मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव. हर एक बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिशन है, हर एक बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिशन है. बट इन दिस कॉम्पिटिशन कौन जीतता है? Who wins the game? The person who is able to satisfy the customer's needs on time. Services are very important. Whether you are a manufacturer or you are into service industry, कोई भी हो, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो या सर्विस इंडस्ट्री में हो, कस्टमर को सर्विस देना बहुत ही जरूरी है. कमिटमेंट्स,
अगर आप प्रोडक्शन में हो, राइट, अगर आप कुछ टेक्सटाइल के कुछ चीजें आप बना रहे हो, यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, साड़ी हो गया, ड्रेस मटेरियल हो गया, आपका कस्टमर फोन करके बोलता है कि मेरे को इतना पीस चाहिए साड़ी का या ड्रेस मटेरियल का, आप कमिट करते हो कि हाँ हाँ मिल जाएगा, एक हफ्ते में मिल जाएगा, लेकिन एक हफ्ते में आप उसको माल नहीं दे पा रहे हो, तो क्या होगा? तो वो कस्टमर जो है वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएगा। दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू गिव हिम प्रॉपर सर्विसेज। सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो धंधा टिका है आपका, वो सर्विसेज के ऊपर ही टिका है। और जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, जितने भी बिजनेस हाउसेस है जो आज टिके हुए हैं मार्केट में, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, द काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर ऑफरिंग। कमिटमेंट होता है ना, कमिटमेंट मतलब एक बार जो मैं कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, बाद में अपनी भी नहीं सुनता। तो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Giving proper services on time with the customer so that customer will stay with you forever. अपने कस्टमर को अपने कॉम्पिटिटर का दरवाजा मत दिखाओ। हम लोग ही है, कस्टमर को सर्विस नहीं देते हैं तो कस्टमर क्या करता है? हमारे कॉम्पिटिटर के पास जाता है। तो हम ही है जो कस्टमर को अपने कॉम्पिटिटर का दरवाजा दिखाते हैं कि गो टू माय कॉम्पिटिटर। फिर बाद में हम कस्टमर के पास जाते हैं, अरे भाई तुमने तो ऑर्डर दिया था, अभी तुम उसके पास से जाके माल ले लिया। भाग्य एक कस्टमर बनाने को कितना टाइम लगता है? इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू विन वन कस्टमर, बट इट टेक्स ओनली जस्ट फ्यू सेकेंड्स के कस्टमर गायब, राइट? तो फोकस ऑन क्वालिटी सर्विसिंग, देन नेटवर्किंग। नाउ एस्टेब्लिश अ नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कैन गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एज। अभी आपके कम्युनिटी में, अभी जो बिजनेस आप करते हो, अभी उसके साथ में नेटवर्किंग आपका बहुत ही जरूरी है। अभी ये प्लेटफॉर्म भी क्या है? ये भी जो एसएमपी का अभी तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे इवेंट के अंदर, ये भी एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ही है। अभी आप एक दूसरे के साथ में मिल सकते हो। नेटवर्किंग मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, नेटवर्किंग मीन्स लोगों के दिमाग में क्या मालूम, नेटवर्किंग करेंगे तो मेरे को धंधा मिलेगा। नहीं, मैं दूसरे को धंधा दूंगा। थिंक ऑफ दैट टर्म। मैं दूसरे को हेल्प कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं नेटवर्किंग में। इफ यू आर एबल टू हेल्प अदर्स, देन ओनली अदर्स विल बी हेल्पिंग यू। डोंट ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ, डोंट ओनली थिंक अबाउट योर ओन बिजनेस कि मेरे को क्या बिजनेस मिलेगा, इतने सारे लोग बैठे हैं तो मेरे को इसमें से क्या बिजनेस मिलेगा। नहीं, इतने लोग बैठे हैं, इनमें से मैं किसके काम आ सकता हूं, दैट इज नेटवर्किंग। आप काम आओ दूसरों, तब दूसरे लोग आपके काम में आएंगे। The next is creative marketing. Now creative marketing is important for changing perceptions and connecting with potential customers. अभी आए थे सर, अभी उन्होंने काफी सारा आपको इंफॉर्मेशन दिया, नॉलेज शेयर किया अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग क्या, वो भी क्रिएटिविटी है। It is a creativity. Creativity means thinking out of box. What others are doing, you are not supposed to do that. You are supposed to do what others are not doing. Do something different. Be the market leader. Don't be the follower. Don't be the follower. Be the market leader. आप पहले करो, आप कुछ नया आइडिया सोचो मार्केटिंग का, यानी कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। थिंक अबाउट that creatively. Then digging into the numbers means using accounting softwares to understand your inventory turns and cash flows. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, सॉफ्टवेयर के साथ चलना है। और आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपके अकाउंटिंग को, इन्वेंटरी को, बहुत सारे आपके जो सेल्स है, कस्टमर के डेटा, बहुत सारे कुछ आप कर सकते हो उसके अंदर। तो यू शुड हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशंस का inventory and cash flow. Getting it? So use that. Then building a strong brand. ब्रांड का भी अभी सर ने बताया कि ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट है। Then creating a customer centric culture. यानी कि आपका पास जो कस्टमर आता है, आपको ये देखना है कि वो कस्टमर मेरा रहना चाहिए हमेशा के लिए, वो मेरे को छोड़ के किसी दूसरे के पास नहीं जाए। राइट? कस्टमर फोकस होना चाहिए। कस्टमर की जरूरतों को समझो। कस्टमर बोलता है मेरे को एक आलू चाहिए तो उसको एक ही आलू दो।
उसको ये मत बोलो कि मेरे पास में 2 प्याज भी है, 2 प्याज भी ले ले, नहीं, उसको जरूरत नहीं है 2 प्याज की, उसको एक ही आलू की जरूरत है, उसको वही दो। कस्टमर को जिस चीज की जरूरत है उसको वही दो, ही इज हैप्पी विथ यू, राइट? देन हायरिंग द राइट पीपल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि आपका बिजनेस चलाने वाला कौन है? एक आप हो और आपके साथ में आपके एम्प्लॉयज हैं, राइट? तो एम्प्लॉयज आपके प्रॉपर होने चाहिए और आपके जो प्रॉपर एम्प्लॉयज है वो प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए। अगर आप रॉन्ग एम्प्लॉयज को अगर आप रखते हो तो आप अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। सो ट्रेन देम वेल, आपके एम्प्लॉयज को यू हैव टू गिव द प्रॉपर ट्रेनिंग अबाउट द बिजनेस एंड अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स मीन्स द स्किल सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम ने लिखा है हमको, बहुत सारी होमवर्क कराया, एक्सरसाइज कराया हम लोगों को, क्या क्या स्किल्स जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है तो हमारे एम्प्लॉयज के लिए भी जरूरी है। देन लिवरेज टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का जितना हम एडवांटेज ले सकते हैं उतना हमको एडवांटेज लेना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का जैसा बात किया, फिर बाद में इन्होंने डेल का भी बात किया, एआई का भी बात किया, काफी सारी चर्चा हुई है इसके ऊपर। देन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू मैनेज द टाइम। टाइम को मैनेज करना, ये एक टाइम का मैट्रिक्स है, मैं जरा जल्दी जल्दी बता रहा हूं आप लोगों को। नाउ इसके अंदर 4 quadrants है, इफ यू सी यू कैन सी 4 quadrants। नाउ व्हाट फर्स्ट quadrant says important and urgent. When it is important and urgent, what you have to do? Do it right now. Second matrix में क्या है? Important but not urgent. So decide when to do it. Then third matrix में क्या है? It is not important but urgent. Delegate it. Who can do it for you? काम सौंपना दूसरे को। Then fourth quadrant is not important and not urgent. Delete it. नहीं करना है. That is time wasters. Time waste नहीं करना है, टाइम को मैनेज करना है, राइट? हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। What we can manage? We can manage ourselves. We have to organize ourselves. We have to plan our daily activities. To do plan जिसको बोलते हैं, वो बनाना है। Then stay focused. Stay focused to your business. Don't get distracted. हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँ, पहला ये करूँ, पहला वो करूँ। Don't get distracted. Just focus at one thing at a time. एक काम को अपने को एक ही बार फोकस के साथ अच्छी तरह से करना है। Then take on the team of advisors and coaches. अभी आप में से कितने लोगों ने मेंटर्स को हायर किया हुआ है? आपने किया हुआ है, वेरी गुड। कुछ 3-4 लोगों ने किया हुआ हायर, जो जिन्होंने नहीं किया है, हायर मेंटर्स फॉर यू। व्हाई यू शुड हायर द मेंटर फॉर यू? फॉर द सिंपल रीजन टू शो यू द राइट वे, बिकॉज बीइंग द ओनर यू थिंक दैट यू आर ऑलवेज राइट, इवन दो इफ यू आर रॉन्ग यू विल थिंक आई एम राइट। तो somebody should be there to show you the right way. Even if you are wrong, then somebody should be there to correct you, right? To guide you, right? So that is why mentorship is very much required. And that's all for the day. Thank you very much.